Hello, student. Today our topic is notice. It is a very essential topic. It comes of 4 marks in the board exam as well. So, what is notice? You all people are aware about notice because in your school, whenever an information or any announcement is to be done, so prior to it, it is pasted on the notice board. So, what is notice? The notice is an information or announcement. It's clear that notice is a kind of an information or announcement, and it is an important piece of information. एक खास information होती है for a larger group of people, फॉर द मास ऑफ द पीपल, ठीक है ना, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज कन्वे किया जा सके, इसलिए एक नोटिस दिया जाता है. नाउ कम of how many marks the notice is of 4 marks, and the 4 marks have been further divided into parts such as format. Notice is written in a format. It has its own format. A box is to be made, so format and 50 words should be there in notice. You cannot exceed above 40 words, so it should be within 50 words. Format is of 1 marks. Now what is content? Content is what the questioner will ask you, on what the topic you have to write a notice, that comes into the content, and it is of 2 marks. What is expression? Expression is how you are writing the notice. So what grammar you are using, spelling mistakes तो नहीं है, or is it understandable what you have written, that it also counts. So it comes in the expression. If there is any mistakes, then the 1 marks will be deducted. Now limit. What is limit? In how many words you have to write a notice? Notice is not such that you can keep on writing in 2 pages. It has its own foundation. So within the 50 words you have to complete your whole notice. Okay, now what is its format? Come to the format. What is format and how a notice should be written? So first of all comes the name of organization or institution. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूशन हो, कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, या कोई क्लब है, या जो भी है, किस ऑर्गेनाइजेशन से वो नोटिस आ रहा है, तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द इंस्टीट्यूशन विल कम. फिर उसके बाद एक लाइन लीव करी जाएगी. यू हैव टू लीव अ लाइन, ठीक है, एक लीव अ लाइन. फिर उसके बाद फिर सेंटर में आपको नोटिस लिखना होता है, NOTICE, और जो कि इट्स नोटिस शुड बी कंप्लीटली इन कैपिटल लेटर्स, बिल्कुल कैपिटल लेटर्स में आप इसको लिखेंगे. फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी डेट आती है, जिसमें डे होता है, मंथ होता है, ईयर होता है. नाउ how you have to write date? There is a standard format of writing a date. Whenever you formally write a date, जब फॉर्मल तरीके में एक डेट आप लिखेंगे, लेटर हो या नोटिस हो या कुछ भी हो, तो उस समझ लें आप कि इसका प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग डाउन अ डेट इज दिस 26 मार्च, or it can be 26 April, or whatever the month it can be, and the year it will come. A comma will come here. Okay, so now understand it. If you are writing a date, as you are in the habit of writing a date in such a way, no, it will not be acceptable. It will be cut it down by the examiner. इसलिए इस तरह से डेट बिल्कुल भी नहीं लिखी जाएगी. फिर उसके बाद सेंटर में आपकी हेडिंग जो होगी या टॉपिक जो होगा, जो भी इवेंट होगा जिस लिए नोटिस किस इवेंट के लिए से लिखा जा रहा है, वो आएगा यहाँ पर. फिर उसके बाद एक लाइन फिर लीव करी जाएगी. फिर आता है आपका कंटेंट. अब कंटेंट में क्या क्या लिखना होता है ये समझ लीजिए आप. इसकी सबसे पहले प्रॉपर बिगिनिंग होती है, सबसे पहले प्रॉपर आप उसकी शुरुआत, हाउ यू गोना स्टार्ट योर कंटेंट. तो व्हाट लाइन शुड बी कम एट फर्स्ट,
तो सबसे पहले जैसे कि एज यू माइट हैव सीन ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल के लिखा होता है दिस इज़ टू इन्फॉर्म, ये सूचित किया जाता है, या सूचित करने के लिए तमाम मेंबर्स या स्टूडेंट्स। अगर किसी कंपनी में है तो मेंबर्स लिखेंगे, ऑब्वियस है, और अगर स्कूल में है तो स्टूडेंट्स लिखेंगे आप, ठीक है। इसीलिए ये लाइन, इट इज़ मैंडेटरी टू यूज़ दिस लाइन बिफोर राइटिंग अ कंटेंट, कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स और स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। अच्छा, फिर आता है व्हाट, किस इवेंट के लिए, क्या बताना चाह रहे हैं, फॉर होम, किन किन लोगों के लिए, स्पेसिफिक पर्पस, भाई किन बच्चों के लिए है, कौन सी क्लास के लिए है, छोटी क्लास है, बड़ी क्लास है, या कौन, अगर स्टाफ हैं तो एकेडमिक स्टाफ हैं, या फिर 4th क्लास है, या जो भी है। अच्छा, व्हेन, अब कोई जैसे कि इवेंट होने जा रहा है, कोई कंपटीशन है, स्पोर्ट्स डे है, या फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, और वॉट एवर द इवेंट इट कैन बी, सो ये कब होना है, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है भाई। तो यू विल हैव टू टेल दैट व्हेन दिस इवेंट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज, व्हाट इज द डेट। तो ये टाइम और डेट ये आपको बताना पड़ेगा, कब से है, कितने बजे से है। अब कोई जिस दिन है, यूँ तो यानी रात को होएगा, तो सुबह में होगा, किस डेट किस टाइम पे होगा, ये बताना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ पर होगा, सपोज एन स्पोर्ट्स डे इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल, सो यू विल हैव टू टेल द डेट, you will have to tell the time from which onward it is going to be started, ठीक है। और कहाँ पर होगा, क्लासरूम में थोड़ी होएगा स्पोर्ट्स डे, तो ये तो स्कूल ग्राउंड में होएगा। तो एक प्रॉपर प्लेस भी होती है किसी भी चीज़ जगह का ऑर्गेनाइज होने के लिए, जिसमें ये समझ लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डे होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। फिर जब आपका when your content will be completed, फिर देन यू विल हैव टू लीव अ लाइन, अगेन यू विल बी लीविंग अ लाइन। फिर उसके बाद आपके सिग्नेचर आते हैं, और फिर आपका नेम आता है, और फिर क्या ओहदा है आपका। सपोज being a head boy of the school you are writing, so you first of all give your signature here, then you will write your name as well। फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन, इसमें डेजिग्नेशन में आप समझ लीजिए, डेजिग्नेशन में आप इसको ब्रैकेट में लेंगे। आप हेड बॉय हैं तो तब, अगर आप कंपनी में हैं कोई तो मैनेजर हैं तो आप फिर यहाँ मैनेजर लिखेंगे, और अगर कुछ और है भाई, आप कोच हैं तो आप यहाँ, अगर स्पोर्ट्स का कोई बताना है तो कोच। अगर जो भी एग्जामिनर पूछेगा आपको, जो भी एग्जामिनर कहेगा कि बीइंग अ हेड बॉय, या बीइंग अ क्लास टीचर, ठीक है, या बीइंग अ स्टोर कीपर, राइट अ नोटिस, ठीक है, तो फिर आपका डेजिग्नेशन हो जाएगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम्पल, नाउ लेट्स बेटर अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2 हेयर। इसमें लिखा हुआ है कि यू आर नारायण, आप नारायण हैं। अब ये बात समझ लीजिए, यू हैव टू कीप इट इन टू माइंड, दिस इज टू ब्रिंग इन टू योर नॉलेज कि नाउ यू विल बी राइटिंग अ नोटिस। अगर ये क्वेश्चन ये लेटर में भी आ जाता है तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट बीइंग अ नारायण या नम्रता, अगर कोई फीमेल है तो ये लिख देगी, मेल है तो ये लिख लेगा, ठीक है। आप क्या करना है, द कल्चरल, आप हो कौन, द कल्चरल सेक्रेटरी हैं आप किंग्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। अब आप हैं कौन, स्कूल भी बता दिया है आपको क्या है, आप कल्चरल सेक्रेटरी हैं किंग्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। तो ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने बात बताई थी आपको वो ये आ गई, ठीक है। डेजिग्नेशन ओहदा क्या है, आप क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी हैं। नेम आपका ये आ गया, जो लास्ट में आनी तीनों चीज़ आ गई, आपके सिग्नेचर भी देंगे आप